Dear students, today I am going to take examples on numerical differentiation. ठीक? So here we are having data, this data, equally spaced data, and we want to find out dy by dx at x equal to 0.1 and x equal to 0.4. Fine? ठीक? So first construct the difference table. Since this is a equally spaced data, so you have to construct this table. So table, I think you have सबको पता ही है. This is forward difference table, very easy to construct. So पहले हमने table बनाया. Now here we want to find out the dy by dx at 0.1 and 0.4. 0.1 is nearby top of the table and 0.4 is nearby bottom of the table. So that's why we have to use the Newton's Gregory forward difference formula to find out dy by dx at 0.1 and dy by dx at x equal to 0.5 is evaluated with the help of Newton's Gregory backward difference formula because this is nearby the bottom. Fine. So this is the formula. क्या किया हमने? जो formula था Newton's forward difference formula, this Newton's Gregory forward difference formula, ये this is the formula, Newton's Gregory forward difference formula. हमने इसको differentiate किया with the help of chain rule. Then finally we have this formula 1 by h delta f x naught plus 2u minus 1 delta 2 f of x naught plus 3u square minus 6u plus 2 divided by this factorial 3 delta 3 f of x naught. So we have to use this formula. Fine. So here this formula is applied. So first, what is u? U is x minus x naught by h. So here u is x is 0.1, x naught is also 0.1. So 0.1 minus 0.1 divided by h, difference is also 0.1, so 0. So put u is equals to 0 in this formula and then utilize this table. Because we are using forward formula, so we have to take this upper diagonal. तो upper diagonal का हम इस्तेमाल करेंगे. So du by dx at x equal to 0.1 is 1 by h multiply by the first difference which is this plus 2u minus 1, u is 0, so minus 1 by 2, second difference minus 0.0049, this plus here 0 0 plus 2 divided by 6, third difference odd. So finally compute this and finally we get minus this value. Fine. Now similarly here Newton's backward difference formula, so this is the new backward difference formula and then use the derivative. So dy by dx is 1 by h into the derivative of this function with respect to u. u के respect में इसको differentiate किया तो ये value हमें मिल जाती है. Now for the backward formula u is x minus x naught plus nh in bracket divided by h. So x is 0.4, x is 0.4, x naught plus nh is 0.4, so 0.4 minus 0.4. So 0.4 minus 0.4 divided by h is 0.1, so this is 0. Fine. So इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अब हम लोअर डायगोनल का इस्तेमाल करेंगे. लोअर डायगोनल ये और ये इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. So finally we get this result. Fine. Now the second example. Second example है हमारा Stirling's central difference के बेसिस पे. So from the following table find out the dy by dx at x equal to 1.6 by using Stirling's formula, Gauss backward formula, Gauss forward formula. तीन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हुआ है. तो हमने क्या किया, पहले टेबल, हमें ये टेबल है, दिस इज अवर टेबल. सो नाउ कंस्ट्रक्ट दिस टेबल, सेंट्रल डिफरेंस टेबल एज इट इज फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह बनती है. सो दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. नाउ हियर पॉइंट इज 1.6 and in this table 1.6 is this. So this is u is 0 here, then increase u by 1 1 1 2 3 or decrease by 1, so minus 1 minus 2 minus 3. So this is our u. Fine. This is Gauss forward formula. Just differentiate this, then we get 1 by h and now the derivative of this with respect to u, so we get this. And then हमारा जो पाथ रहेगा क्या है, फॉरवर्ड है क्योंकि गॉस फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो ये डिफरेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में और जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फाइनली वी गेट द रिजल्ट दिस. ठीक. नाउ
गॉस बैकवर्ड में ये फॉर्मूला है 1/h, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, सो वी गेट दिस रिजल्ट। फिर इसमें वैल्यू रख दी हमने, जो वैल्यू रखेंगे वो बैकवर्ड की तरह रखी जाएंगी। सो बैकवर्ड में हम चलेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे एंड फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक। देन स्टिरलिंग्स फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, एवरेज था दोनों का। तो दिस इज द स्टिरलिंग्स फार्मूला। फिर हम इसमें रखेंगे तो दो जो अब डिफरेंसेस आएंगे वो पूरी टेबल आएगी जो हमने बनाई थी, ये पूरी टेबल आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आएगी, ये दोनों, बिकॉज एवरेज, दिस इज द एवरेज, तो दैट्स वाई। फाइन, तो ये हमारा टेबल रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई बाय 1/h, सो वी गेट दिस। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये वैल्यू आ गई हमारे पास फाइन। सो ऐसे ही बेसिस लगाया जा सकता है। नाउ वी आर हैविंग लैग्रेंजेस। तो लैग्रेंजेस के लिए एक अनइवनली स्पेस्ड डेटा ले लिया हमने, इसमें हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव की एट पॉइंट 4 पे। तो सबसे पहले हमने अपना लैग्रेंजेस फॉर्मूला लगाया। हियर वी हैव, दिस इज अवर लैग्रेंजेस फॉर्मूला, these are the fundamental polynomials L0x, L1x, L2x, L3x, fine. And finally after calculation we get this polynomial f of x is x cube, and then just differentiate this 3x square, but we want that function derivative at 0.4, so इसमें 4 put करेंगे तो 48. So this will be the table for Lagrange's formula, and now we have to compute this for divided difference. So this is the divided difference table. So now construct the polynomial with the help of divided difference. So these are the values which we will use. Finally after using these values we have this polynomial and then differentiate this, so we get 48. Fine. अच्छा, अब कई बार हमें मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टैबुलेटेड फंक्शन। तो एक टैबुलेटेड फंक्शन है, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। फाइन, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि हमें वी नो दैट टू फाइंड आउट द मैक्सिमा मिनिमा वी हैव टू पुट dy by dx इज 0 और duy by du, बिकॉज जनरली अवर फॉर्मूला they will be given in terms of u, so dy by du is equal to 0 and get u. Fine. Now if the second derivative is positive then u is minimum, if second derivative is negative u is maximum. So this is the simple strategy. Let's see. So here we have this data, so find x for which y is maximum and find its value. So this is the difference table of this data, equally spaced data. So this is the table. Here we are using Newton's Gregory form, because अब हमें ये नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे निकालना है, अब तो हमें सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसके फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सो दिस इज द फार्मूला। सो नाउ नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, फाइन, हायर ऑर्डर टर्म्स यानी इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज जितने ज़्यादा टर्म्स लेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। सो वी वांट ओनली लीनियर टर्म्स, आफ्टर डेरिवेटिव वी वांट ओनली लीनियर टर्म्स। सो हमने सेकंड ऑर्डर तक की टर्म ले ली। आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वी गेट लीनियर टर्म्स, सो यू की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। सो वी आर नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। सो नाउ वी हैव ओनली दिस फॉर्मूला अप टू दिस, हमने सेकंड ऑर्डर तक का ले लिया है। अब हमने इसको dy by du इवेलुएट किया एंड देन पुट इट 0, dy by du is 0. So here we have a 0, delta y naught is nothing but this value, ये वैल्यू, प्लस 2u minus 1 by 2, ये वैल्यू, ये हमने यहाँ पुट कर ली। इसकी हेल्प से u की वैल्यू कैलकुलेट करा ली। तो जब हमें u पता लग गया तो हमें u इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच हमें पता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट योर x. सो x इज 1.576. सो इस पॉइंट पे इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी। सिमिलरली और आप जो है वो मिनिमम वैल्यू भी इवेलुएट कर पा सकते हो। फाइन। अच्छा, अब अगर हम बॉटम पे निकालना चाहते हैं एज x इक्वल टू 5, अब हम इस पे वैल्यू चेक करना चाहते हैं। ये तो हमें पता लग गया व्हाट इज अवर x, लेकिन अब हम अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं 1.516 यहाँ आएगा। सो वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो वैल्यू निकालने के लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला।
एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाया हमने, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो दिस विल बी द वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू आती है हमारी फाइनली। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपका ओवर हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। थैंक यू।